Let us understand the vision of this event in the words of the man behind it. تو اب میں دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر اسد دوست محمد کو کہ وہ آئیں اور اس ایونٹ کا مختصر مقصد آپ سب سے بیان کریں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ سب تشریف لائے. بس 1-2 منٹ میں آپ سے ایک گزارش کرنی ہے آپ کے سامنے کہ یہ ایونٹ ہے بچوں کا. ایسے بچے جس کو سوسائٹی نے اگنور کیا، وہ بچے جو ٹوٹے ہوئے سمجھے جاتے تھے، تو ان کی سٹوری زیرو سے اللہ کے کرم و فضل سے عروج تک کی سٹوری آپ کے سامنے رکھی جائے گی. میں نے یہاں پر کسی کو کوئی تفریق نہیں، سارے آپ برابر ہیں، اور آپ میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو میرے عزیز ہیں، میرے اپنے سرکل سے ہیں. یہ ایک سٹیپ ہم نے لیا، وہ سٹیپ جو لینے سے دنیا ڈرتی ہے، ہم نے ہمت کی اللہ کے کرم و فضل سے، اور آج اس کا نتیجہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب اس کے فٹنس ہوں، آپ گواہ بن جائیں. دوسرے نمبر پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا گو ہوں، ہماری سپورٹ بنے. تیسرے نمبر پہ آج کے اس ایونٹ میں کوئی تقریر نہیں ہوں گی. چند ایک چیزیں، چند ایک فیکٹس، چند ایک حقائق آپ کے سامنے رکھے جائیں گے تاکہ آپ اسے دیکھیں، آپ اسیس کریں، اور آخر پہ آپ ہمارا ساتھ دیں. تو میں بلا تاخیر جو ہمارے ہوسٹ صاحبہ ہیں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ایونٹ کو کنٹینیو کیجئے. آخری درخواست پیشنس کے ساتھ، آپ لوگ بہت دور دور سے سفر کر کے آئے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ دل جمعی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ دیکھیں، سنیں اور اس کو سمجھیں. آج کا دن ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کی لمبی زندگیاں ہیں، سالوں کی، اللہ آپ کو اور زندگی دے. تھوڑا سا ٹائم اگر آپ نے نکالا ہے تو پیشنس کے ساتھ آپ اس ٹائم کو سنیں اور اسیس کریں کہ آپ کو ہم کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا دعوت آپ کو دینا چاہتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کشف ایمان ہے، اور یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے نظام کا تعارف پیش کر رہی ہوں جس نے نہ صرف ہماری سوچ، ہماری تعلیم اور ہمارے مستقبل کو بھی بدل کر رکھ دیا. یہ کوئی روایتی اسکول نہیں ہے، یہ بلکہ ایک ریسرچ سینٹر ہے جسے دنیا کے تعلیمی اداروں کے اوپر تحقیق کر کے، تعلیمی نظام میں تحقیق کر کے دنیا میں لایا گیا، عمل میں لایا گیا. یہ ہے الکاف، ایک سادہ مگر انقلابی نظام جو آج کی دنیا کی ٹوٹی پھوٹی، روایتی، بیکار کن تعلیمی نظام کو للکارتا ہے. الکاف کو بہت ہی کم اور لمیٹڈ وسائل کے ساتھ لایا گیا. یہاں پر بچوں کو IT، AI، تحقیق، سائنس، قرآن، درس نظامی، ان سب کی تعلیم سے روشناس کروایا جاتا ہے. یہاں پہ لیڈرز بنائے جاتے ہیں. اگر ہم الکاف کی ایجوکیشن سٹائل اور ایگزامینیشن سسٹم کی ہم بات کریں تو یہاں کا ایگزامینیشن سٹائل باقی اسکولوں سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ یہاں پر نہ رٹے لگائے جاتے ہیں، نہ ہی نمبروں کی دوڑ ہے. یہاں پر بچوں کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ یہاں پہ کیونکہ کریٹو انڈیپینڈنسی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، یہاں پر بچوں کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ خود سیکھیں، لکھیں، تحقیق کریں اور خود ریسرچ کریں اور اپنی گروتھ کو خود انالیسس کریں. یہاں پر ایگزامینیشن کے نام پر کوئی منفی دوڑ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ کر آگے بڑھا جائے، بلکہ یہاں پہ گروپ ورک، ٹیم ورک، کولیبوریشن کے ساتھ یہاں پر کام کیا جاتا ہے. کیونکہ الکاف کا مقصد ہے کہ وہ بچوں کو، یہاں کے جتنے بھی طالب علم ہیں، ان کو اس قابل بنائے کہ ہر بچے کے اندر کسی نہ کسی درجے کے اوپر ایک ریسرچر، ایک سائنٹسٹ، ایک فلاسفر پایا جائے، ایک لیڈر ہو، ایک تھنکر ہو. الکاف کا مقصد ہے کیونکہ الکاف کے بیسک کور ویلیوز میں کہ وہ نئی نسل، ہماری یوتھ کی تربیت کرتا ہے، ان کی کردار سازی کرتا ہے، ان کو شعوری تربیت کرتا ہے. کیونکہ یہ جو تعلیمی نظام ہے کہ ذہن کے ساتھ ساتھ قلب کی بھی تربیت کرتا ہے، اور یہ امت کی پوشیدہ صلاحیتوں کو ابھارتا ہے، اور یہاں پہ سوسائٹی کے نارمس کو توڑ کر لیڈرز بنائے جا رہے ہیں. الکاف کے اندر کوئی نوکریوں کے لیے نہیں پڑھایا جا رہا، الکاف کے اندر رٹے نہیں لگائے جاتے، یہاں پہ ہوم ورکس، ڈائریز نہیں دی جاتی، کوئی بے مقصد دن نہیں منائے جیسے لیمو ڈے، مالٹا ڈے یا پھر آلو ڈے.
यहाँ के अलकाफ एक तालीमी निज़ाम नहीं है, एक सिर्फ और सिर्फ तालीमी निज़ाम, एक दर्सगाह है। यहाँ के बच्चों को फहाश गानों, बेहयाई के रक़्स, पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर देने वाली एक्टिविटीज़ में नहीं झोंका जाता। यहाँ के बच्चों को हम फख्र से कहते हैं कि यहाँ के बच्चों को इस काबिल बनाया जाता है कि वो सोशल मीडिया जैसे वायरसेस से दूर है, पॉप कल्चर की जहनी आलूदगी से दूर है, शोबिस की ग्लैमर से पाक है यहाँ के बच्चे, क्योंकि यहाँ के बच्चों को उनकी हिस्ट्री से वाकिफ़ करवाया गया है, यहाँ के बच्चों को उनकी हिस्ट्री से रोशनास करवाया गया है और इस काबिल बनाया गया कि वो आजकल के सोशल मीडिया ट्रेंड्स को फॉलो ना करें, टिकटॉक के ट्रेंड्स को फॉलो ना करें, बल्कि पॉजिटिव ट्रेंड सेट करें। यहाँ के बच्चों को एक तरबियत की जाती है कि वो दुनिया को बदलें अपने इल्म, अपनी किरदार, अपनी क़ियादत के साथ। यह है अलकाफ, एक सादा मगर इनकलाबी निज़ाम। और हम आपको दावत देते हैं कि आप हमारे साथ एक ऐसे मुस्तक़बिल का हिस्सा बने जो वाकई तामीर के काबिल है। जज़ाकल्लाह खैर। तो अब दावत दी जाती है अलकाफ के IT एक्सपर्ट मिस्टर इनामुर रहमान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि असद साहब ने थोड़ी देर पहले कहा है कि आज हमारा स्पीचेस का या तकरीरें करने का कोई इतना मकसद नहीं है। वैसे भी हमें तकरीरें करने का शौक़ नहीं है, क्योंकि हम जस्ट करके दिखाते हैं, ना बोलते हैं, ना कैमरे के सामने आते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे अलकाफ की और वैल्यूज़ में हैं। पहले तो वैसे मेरी गलती की एक तारीफ अपना नहीं करवाया, क्योंकि मैं एज्यूम करता हूँ कि मोस्टली लोगों को पता होगा। मैं तारीफ करवाया हूँ। मलिक इनामुर रहमान मेरा नाम है और IT और क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सपर्ट पाकिस्तान में हूँ, और प्यास से मेरा आगाज़ हुआ था इस शोबे का एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ, IST के साथ, स्पार्को के साथ, और जोग्राफिया IT कंपनी है अमेरिकन, उनके साथ मेरा सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और IT से रिलेटेड जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें मैं काम करता रहा हूँ, और तकरीबन 8 से 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में। लेकिन इन सब चीज़ों से हट के जो ऑब्जेक्टिव हमने स्टार्ट किया था वो अलकाफ का ऑब्जेक्टिव था। बेसिकली तो ये ऑब्जेक्टिव जो है 2017 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, और मैं इसके फाउंडर्स में से मैं भी शामिल हूँ, जिन्होंने अलकाफ की बुनियाद रखी थी असद साहब के साथ मिलके, और भी लोग शामिल हैं इसमें। तो बेसिकली जो अलकाफ की हमने बिल्डिंग रिक्वायर की थी या इस मकसद का आगाज़ किया था, वो हमने 2023 से जो है यहाँ पे स्टार्ट किया था। और उसमें मुझे याद है कि मैं जिस दिन यहाँ पे आया था तो मैंने यही कहा था कि जिस इंस्टीट्यूट को, जिस इदारे को मैं छोड़ के अलकाफ के अंदर आ रहा हूँ, उस इदारे में और उस दिन की जो अलकाफ थी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और एक आम दुनिया, कुछ मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं जो आज मेरे से पूछ रहे हैं कि ये क्या है, ये कैसे हो रहा है, तो मैं अभी इनको यही कह रहा था कि उस दिन जब हम मिले थे, जिस दिन मैंने कहा था, तो 99.9% ने मुझे कहा था कि यू आर रॉन्ग, तुमने गलत डिसीजन किया है, बहुत गलत डिसीजन किया है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। इस तरह कोई भी नहीं कर सकता कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन की वो जहाज के जिसे ढूंढने के लिए, जिसके लिए लोग मरे जा रहे हों, वो छोड़ के आप एक ऐसे ऑब्जेक्टिव की तरफ आ रहे हो जिस ऑब्जेक्टिव को आप पब्लिक को डिफाइन ही नहीं कर सकते। आप बता ही नहीं सकोगे कि ऑब्जेक्टिव है क्या। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमने जो तालीम देनी है वो तालीम देनी है कि जो हमारी तालीम है, मतलब जो तालीम जो है हमें बताई गई थी, जो जिस इल्म का जिक्र आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था और जो इल्म का जिक्र किया गया था वो तालीम है। तो बेसिकली वो तालीम तो हमारे इस माशरे में हमें नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए ही हमने कुछ एजुकेशनल इदारों में जॉब की कोशिश की कि अगर हम क्या कर सकें, उन इदारों में कुछ तब्दीली लेके आ सकें, तो कोशिश करते हैं। लेकिन नहीं, एग्जैक्टली कि दुनिया में आप जो भी देख लें, हम इस्लाम की बात करें, आप सिस्टम की बात करें, जिस चीज़ की बात करें, लोग उसी चीज़ को मानते हैं जो उनके पास है, ठीक है। उसके अगेंस्ट तो कोई नहीं जा सकता, स्टेक होल्डर्स उसके खिलाफ नहीं जा सकते। आप चाहे उनके सामने कि सोना पेश करें, जो मर्जी पेश करें, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन थी कि ठीक है हम सबको छोड़ते हैं, फिर जाके हम अपनी जो है एक छोटी सी ड्यूटी लगा लेते हैं। तो अगर अल्लाह का मंजूर हुआ कभी, तो दुनिया हमारे पीछे आएगी और दुनिया हमारे पीछे आ गई है। टोटल हम 2 बंदे थे जिन्होंने आके इसी अलकाफ की बिल्डिंग के अंदर हम बैठ गए थे, और हमारे पास बस एक मैट्रेस ही था जिसके ऊपर हम बैठ के काम करते थे, और एक लैपटॉप था, और हमने इस सिस्टम का जो है बात किया। सिस्टम की डेफिनेशन की तरफ मैं नहीं जाऊँगा कि सिस्टम क्या काम करता है, वो मैं बता रहा हूँ कि आपने देख लिया और इंशाल्लाह आप देखते जाएंगे, बताने की जरूरत नहीं है कि सिस्टम हमारा क्या काम करता है।
अभी इस सिस्टम में हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसकी डायरेक्शन क्या हैं और इस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है और ये सिस्टम हम बाकी सिस्टम से क्यों जुदागाना क्यों है, किस बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि इस सिस्टम जो है ये बाकी सिस्टम से मुख्तलिफ है। जस्ट उसकी बेस पे मैं एक बात करूँगा और बस यही है कि 2 पॉइंट्स रखूँगा आपके सामने कि आजकल जो डिबेट चल रही है कि स्किल एजुकेशन या IT एजुकेशन जो है वो बहुत मस्ट है, वो ज़रूरी होनी चाहिए। कुछ इदारे हैं जो एक चाहते हैं कि हम इन स्किल्स को या स्किल्स एजुकेशन को अपने जो करंटली सिस्टम है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें इंडल्ज कर लेंगे और हम क्या कर लेंगे कि हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे, क्योंकि अभी AI का दौर है, फ्यूचर में क्वांटम का दौर है, क्वांटम कंप्यूटिंग का, और सिस्टम जो है वो यही कहते हैं कि हम इसको क्या कर लेंगे, स्किल्स को अपने सिस्टम में ले आएंगे और हम क्या कर लेंगे, ग्रो कर लेंगे। अब वो किस तरह से उस सिस्टम को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं कि अगर आपके पास एथिक्स नहीं है, अगर आपके पास सिस्टम को यूज़ करने के प्रोटोकॉल्स नहीं है, अगर आपको सिस्टम को एथिकली चलाने के प्रोटोकॉल्स नहीं है, आप उस सिस्टम को कैसे यूज़ कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने रखूँगा कि इस तरह की बेसाब एग्जाम्पल्स हैं जो हम इस सिस्टम के अंदर लेके आ रहे हैं और हम इसको क्या करते हैं, कंपैरिजन में लेके आते हैं बाकी सिस्टम से। कि फॉर एग्जाम्पल आप एक अच्छे स्किल डेवलपर बन गए हैं, अच्छे IT एक्सपर्ट बन गए हैं किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ, और आपको एक पिच किया जाता है कि आपने एक बैटिंग साइट जो है वो बनानी है। फॉर एग्जाम्पल बैटिंग साइट तो शायद आइडिया हो, क्योंकि हम IT के लोग हैं, हमें आम ज़रूरतों पर ज़्यादा पिचिंग यही की जाती है कि जो जुए की इस तरह की वेबसाइट्स या सॉफ्टवेयर होते हैं वो बनाने हैं। तो उनके अंदर समझे कि अगर आम किसी प्रोजेक्ट में 1 टाइम रेवेन्यू है तो उस साइट के अंदर 10 टाइम जो है ना 10 टाइम रेवेन्यू होगा। तो अगर आपके पास 10 स्किल है तो आपने क्या करना है, आपने उस स्किल को यूटिलाइज करना है। आपने कहा ठीक है तो अच्छी बात है ना, मेरे पास स्किल है, मैं उसको इस्तेमाल करके चीज़ बना देता हूँ, लेकिन एथिकली वो चीज़ जो है वो नहीं है, ठीक नहीं। अब जो बच्चा उस एग्जिस्टिंग सिस्टम से निकल के आ रहा है उसको तो उस चीज़ से कोई तल्लुक ही नहीं है कि जो नाच गाना डांस टिकटॉक वो एक नॉर्मल चीज़ समझता है, उसको गलत समझता ही नहीं। तो उसके नज़दीक के बैटिंग साइट बनाना क्या होता है कि उसको स्किल आती भी है, वो बना भी सकता है और वो क्या कर सकता है, उससे उसको 10 टाइम रेवेन्यू भी ज़्यादा है। तो जस्ट ये एक एग्जाम्पल ही है जिससे क्या कर सकते हैं। और अल्ताफ के ऑब्जेक्टिव को मैं इसे एक एग्जाम्पल से ही जो है ना सामने आपके रखूँगा कि आप सारे समझदार और अक्लमंद लोग हैं, आपको पता है कि ये ऑब्जेक्टिव किस तरह। सेकेंड, यहाँ पर अभी प्रोजेक्ट डिस्प्ले बच्चों के होंगे और हम उनको एवेल्युएट भी करेंगे। अभी जिस कंपनी के साथ मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ वो जोग्राफिया बैरियर टाउन में है, फेज 4 में, और उसमें से मैंने कुछ एवेल्युएशन जो है IT एक्सपर्ट्स हैं जो इस मुल्क के टॉप IT क्रीम में आते हैं, उनको मैंने बुलाया है। और उनको मैंने इसलिए बुलाया है कि वो आएँ और वो क्या करें, हमारे बच्चों के प्रोजेक्ट्स को एवेल्युएट करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम प्रोजेक्ट एवेल्युएट करने के लिए जाते हैं, लेकिन आपकी कोई यूनिवर्सिटी है जिसमें बच्चे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्रेजेंट करेंगे जिसको हमने एवेल्युएट करना है। मैंने कहा नहीं जनाब, हमारा जो सबसे बड़ा बच्चा है उसकी 13 सालों पर है, बस वही आपका प्रोजेक्ट जो है डिस्प्ले करेगा, एवेल्युएट आपको करने जाना है। दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ था कि उम्र या एज या आपके पास इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जो आपको एक बताया जाता है कि आप इतने सारा तालीम हासिल करेंगे दैन आप आगे जाएंगे आपको कुछ मिलेगा। इसकी मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ कि हमारा माशरा जो है वो इसी तरह से ट्यून हो गया है कि आपका एक कंपनी का CEO जो एक हायरिंग के चेयर पे बैठा हुआ है, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसे भी इस चीज़ का आइडिया है कि ये बच्चा 16 साल 18 साल तालीम हासिल करके है, इसके दिमाग में कख भी नहीं है, इसके पल्ले कख भी नहीं है। वो उसे फिर जिधर लेके जाता है वो बच्चा उसके पीछे जाता है। 16 साल तालीम के बाद उसे 10,000 की इंटर्नशिप देते हैं तो वो कहता है सर जनाब आपको शुक्रिया, वो उसके पाँव में भी जाके गिरता है। लेकिन इसके बराबर मैंने उसी कंपनी में ही उसी जगह पे भी ऐसे लोग भी देखे हैं जो उससे आधी तालीम के होते हैं, लेकिन वो CEO कहते हैं कि दीज आर माई स्किल, दीज आर माई एक्सपर्टीज, अगर आपको चाहिए तो ले, नहीं चाहिए तो ना ले, किसी और को जाकर दे देते हैं। ये डिफरेंस है कि अगर किसी बच्चे के पास आपके पास कोई स्किल या काबिलियत होगी तो आप सामने जाके इंटरव्यू नहीं देंगे, टाई लेके नहीं बैठेंगे, CV लेके नहीं घूमेंगे, आपको कंपनी जाहिर करेगी, कंपनी आपको बुलाएंगी, आपको कहेंगे कि आप हमें सर्विसेज दें, हमें आपकी नीड है, हमें आपकी ज़रूरत है। तो ये ऑब्जेक्टिव है। अभी आपको अल्ताफ की स्टोरीज के बारे में बताएंगे। हमारे ये 12-12 साल के बच्चे प्रोजेक्ट विन कर चुके हैं, अपना एक एजेंसी बना चुके हैं और फ्रीलांसिंग से अर्निंग शुरू कर चुके हैं, जो कि एक ख्वाब था, एक कहा जाता था पता नहीं होगा तो नहीं होगा, ये कर चुके हैं।
लेकिन प्लीज कंटिन्यू। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक है या ठीक डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सा एजुकेशन सिस्टम है वो उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। आप जस्ट सिर्फ एक ही पैरामीटर, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम का सिर्फ एक ही है, कोई और पैरामीटर नहीं है। आप अपने एजुकेशन सिस्टम को, किसी भी एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं, आप उसे जस्ट रेट कर लें कि आपका कोई भी एजुकेशन सिस्टम हमारे दीन के मुताबिक है कि नहीं। सिंपल सी बात है, अगर वो दीन के मुताबिक नहीं है तो मैं उसे एजुकेशन सिस्टम नहीं समझता। वो होगा अपनी तरफ से जो कुछ भी होगा, लेकिन मैं उसे एजुकेशन सिस्टम नहीं समझता। एडवर्टाइज करें, बेशक करें, उनका हक है एडवर्टाइज करना, और शायद वो हमारे से अच्छे इवेंट करा लें, हमारे से आगे चले जाए, लेकिन मैं नहीं समझता, मैं क्या नहीं समझता, कुरान नहीं समझता कि वो ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है जो दीन के मुताबिक और दीन के अकॉर्डिंग जिसके SOPs ना बने। बस यही कुछ बातें थी जो मैंने करनी थी। बाकी आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, आपका शुक्रिया आने का, और अभी आगे हमारे सेशंस चलेंगे और कुछ चीज़ें डिस्प्ले होंगी। मैं बात का इख्तिताम जो है वो सिर्फ कुछ शेरों के साथ कर दूँगा कि चल ना सकोगे तुम, ये रास्ता आसान है, कि चल ना सकोगे तुम, ये रास्ता आसान है, आओ तुम्हें ले जाएं, वैसे भी तो जाना है। अभी जिस चीज़ का दावा जनाब इनामुर रहमान साहब करके गए हैं, उसी का एक अमली नमूना पेश करने के लिए मैं दावत देती हूँ जनाब दयान असद साहब को कि वो आएँ और अपना IT प्रोजेक्ट हमसे शेयर करें। माय नेम इज़ दयान असद। मैं पाकिस्तान में IEEE का मेंबर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके साथ साथ मैं जो हूँ हील का मेंबर हूँ, और मैंने अपनी डिग्री जो है वो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से कंप्लीट की है। तो जैसे कि अभी इनामुर रहमान सर ने आपको बताया था कि बच्चों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और बहुत सारी एफ़र्ट्स किए हैं, तो अभी मैं आपको वही एफ़र्ट्स शोकेस करूँगा कि ये सिर्फ बातों तक नहीं है। और जैसा कि आपको बताया गया था कि बच्चों ने प्रोजेक्ट्स विन किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं जो उन्होंने बाहर जो है 1 लाख प्लस के जो है वो सेल भी किए हैं। मैं खुद एक ग्रेजुएट हूँ, और मुझे पता है कि ये जो बच्चों ने प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये आपको जैसे सर ने बताया कि कोई डिग्री पास है, MS है, उसके लिए भी इतना इजी नहीं होता, क्योंकि आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्किल्स से ज़्यादा जो है ना आपको ये सिखाता है कि आपने बाहर कैसे जाना है या आपको स्टेज फियर कैसे कम होगा, लेकिन जो आपको स्किल्स है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, वो अलकैफ का जो है वो मकसद है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये कंप्लीट किया है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो पहला बच्चा है, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स देखी होंगी, आप लोग फूड ऑर्डर करते होंगे ऑनलाइन, जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वो फूड ऑर्डर के लिए वेबसाइट यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को तो बस ये होता है कि हमने फूड ऑर्डर कर लिया तो इससे रेस्टोरेंट को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये जो वेबसाइट बना के रेस्टोरेंट को देते हैं ये डॉलर्स में जाती हैं। इसकी कॉस्ट जो है आप अप्रॉक्सीमेटली $10,000 से लेके उससे आगे तक होती हैं, जो कि एक IT एक्सपर्ट्स करते हैं। लेकिन आप इधर देखिए अलकैफ के एक जो है हमारा बच्चा जो है, जो सिर्फ 14 साल का है, जिसका नाम जलाल खान है, उसने सेम वो वेबसाइट बनाई है जो बाहर तक IT एक्सपर्ट्स बनाते हैं। और ये आपको वेबसाइट का इंटरफेस भी दिख रहा होगा, इसमें आप देखें कि उसने कलर स्कीम से लेके हर एक वो फीचर ऐड किया है जो कि पेड वेबसाइट्स का होता है। तो मैं कहता हूँ ये एक बहुत बिग अचीवमेंट है कि एक 12 साल का और 14 साल का बच्चा जो है वो इतना बड़ा काम कर रहा है, तो फ्यूचर में वो इससे बड़ा काम कर सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे जब भी पाकिस्तान में तो मतलब इसका इतना वो नहीं है, लेकिन जब भी बाकी लोग जो है वो बाहर जो है वेकेशंस पे जाते हैं या उन्होंने अपने हॉलीडेज जो है वो गुजारने होते हैं, तो वो पहले से बुकिंग करते हैं। तो जो बुकिंग वेबसाइट्स होती है ना होटल की, वो अप्रोक्सीमेटली अराउंड कॉस्ट करती है, जो मैंने अपना रिसर्च की थी उसके हिसाब से $15,000, जो कि पाकिस्तान के हिसाब से आप लगा लेंगे 70-80 लाख रुपए बनते हैं। तो इधर हमारे एक और जो है वो होनहार स्टूडेंट हैं अली हसन, जो सिर्फ 8 साल के हैं, सिर्फ 8 साल के। अब आप खुद हिसाब लगाएं कि 8 साल का बच्चा, ना उसकी कोई डिग्री ना उसकी कोई क्लास, लेकिन उसने जो है वो वाला काम किया है जो एक जो है 32 साल का 33 साल का बंदा रगड़े खा के जो है बहुत अपना एक्सपीरियंस लेके वो करता है। अच्छा, चैट GPT का तो आप सबको पता ही होगा,
मतलब चैट जीपीटी जो है ना वो आजकल ऐसे है कि बच्चों में कहा जाता है कि अगर आपने खाना भी खाना है तो वो भी आप पूछते हैं चैट जीपीटी से कि मैं आज क्या खाऊं। तो ये जिनको नहीं पता उनको मैं बता सकूं कि ये एक एआई मॉडल ट्रेन होता है। इसलिए प्लीज एक तरफ आगे हो जाए, आप इसका साइज करके और उसका काम देखें और फिर डिफरेंस बनाएं। तो अब आप देखें कितने से बच्चे ने वो काम किया है जिसके ऊपर चाइना के डीप सीक ने अभी जो है वो $1 मिलियन लगाए थे। ये सर्च इंजन क्या करता है कि ये पूरे इंटरनेट से या पूरे आपको जितने भी वेब सर्वर हैं जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उन सबको इकट्ठा करता है। आसान लफ्ज़ों में ये कह लें कि इसके पास जो है ना काफ़ी ज़्यादा किताबें हैं। अब आप इससे जो पूछोगे वो किताब सेलेक्ट करेगा और उस किताब में से वो उस चीज़ का जवाब देगा और इसकी तादाद लाखों में होती है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सिर्फ 15 साल का बच्चा है और अभी 6th क्लास में है जिसने ये काम किया है। तो हम लोग गेम तो बहुत खेलते हैं लेकिन अभी हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये गेम बनती कैसे है या इसके लिए क्या मेहनत होती है या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक गेम जो आप लोग खेलते हैं 10 मिनट के लिए, उस पर जो डेवलपर होता है उसको तकरीबन जो है आपकी जेब से हज़ारों रुपए जा रहे होते हैं। तो हमारा जो ये बच्चा है मोहम्मद मोहसिन जो 14 साल का है, उसने एक गेम डेवलप कर दी है। इन्होंने गेम डेवलप किया। अच्छा, गेम डेवलपमेंट के लिए आपको पता है कि बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, उसके अंदर प्रोग्रामर्स होते हैं, आईटी एक्सपर्ट्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। वो पूरी टीम जो है वो बैठती है, $1 मिलियन खर्च करती है, फिर एक गेम बनाती है। तो ये सिर्फ 8th क्लास का स्टूडेंट है जो कि आपको गेम दिख रही है। इसका अगर मैं कोई इंटरेस्टेड हो तो मैं बताता भी चलूँ। ये मॉन्स्टर्स जो है ना, हमने इनको इधर आने से रोकना होता है और ये हमारे जो है वो कैटापल्ट्स होते हैं। तो ये पूरी वर्किंग गेम है। पीछे हम लोगों ने बूथ दिया हुआ है। अगर आप लोग कोई भी इस प्रोजेक्ट में या कोई चीज़ देखने में इंटरेस्टेड है तो वो पीछे जाए, बैक स्टेज जाए और इसको आप जो है ना पूरा डिस्कवर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं IEEE का मेंबर हूँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता सकूँ कि IEEE क्या है। IEEE एक इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी है जो कि पाकिस्तान में सिर्फ 3-4 जगहों पे काम करती है, जिसके अंदर कॉमर्स यूनिवर्सिटी आ जाती है जिधर से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, फास्ट यूनिवर्सिटी और नस्ट यूनिवर्सिटी, मतलब जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं इस्लामाबाद की या फिर पाकिस्तान की उनकी। तो उसका एक चैप्टर है IEEE पैच जिसका मैं चेयरपर्सन रहा हूँ और हम लोगों ने नेशनल लेवल इवेंट्स कराए हैं रोबियन के नाम से, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम 2 लाख से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था पूरे पाकिस्तान से, जो कि एक बिग अचीवमेंट थी। तो आपको ये सब बताने का मकसद ये है कि अलकैफ ने अभी वो काम तो आप लोगों के सामने कर दिए हैं जो कि पॉसिबल नहीं लगते थे एक छोटे बच्चे के लिए। तो फ्यूचर में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? आप लोगों ने रिमोट कंट्रोल गाड़ी देखी होंगी या कोई और गैजेट्स देखे होंगे। तो फ्यूचर जो वर्क है जो मैं खुद माइसेल्फ करूँगा बच्चों के साथ, वो ये है कि हम इनको चिप्स के बारे में ट्रेनिंग देंगे। ये डिग्री के बाद जो लोग जाते हैं IC डिज़ाइनिंग में या फिर 16 जमातें पढ़ के आगे जाते हैं, इनको ये ट्रेनिंग इंशाल्लाह हम लोग रोबोट बनाना जैसे आर्डिनो होता है, या आप कह लें कि जो एक मेन चीज़ होती है ना किसी चीज़ को चलाने के लिए, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए इंजन होता है, हम इनको वो इंजन बनाना सिखाएंगे। और बस आप सबसे यही गुजारिश है कि अलकैफ के साथ जुड़े रहिए और जितना हो सके हमें सपोर्ट करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।